as women struggle with technical things, the technical students of Tech Ninja, they are already into this course because they know they have to learn technical skills to go a step ahead into their working profession as well as at their home. But in today's workshop, we will be guiding you each and everything regarding this process of how to use laptop properly. So without much ado, let me introduce to you the trainer for today. It is none other than Miss Shikha Sikka. Shikha is our Tech Ninja trainer. From last 2 years with Skill Ninja Academy, and she has been wonderful in her technical skills. The way she teaches, I think the ladies are all gala about Shikha ma'am. If I talk about her professional experience, she's MBA in HR and marketing. She has done B.Ed with 15 years of corporate experience. And the people who are from corporate, they are well versed with technicalities, with the technical skills, and that is how Skill Ninja Academy has given her the opportunity to teach you ladies the technical skills. And I'm sure Shikha is very happy, and we are very happy with Shikha ma'am, the way she takes the class and the way she teaches everybody. It is very nice to see how she's making all of you learn new things. Currently, as she's working with Skill Ninja Academy, and she's one of the pilot trainers of Tech Ninja course. So I think Shikha, more ladies want to know about you from you only. So over to you, Shikha. I think all are excited to know, and जल्दी जल्दी आपसे सब सुनने के लिए interested है कि आज क्या करने वाले हैं. Good morning, everyone. Good morning, Mandeep ma'am, and thank you for such a warm welcome. Your words really mean a lot to me, and yes, I am proud to be associated with this academy. This academy has given me strength, and this has given me a sense of belongingness that I am doing something good for the society. As my introduction, Mandeep ma'am did mention that I am from the corporate background. जी हाँ, मैं human resource side से हूँ और मैंने 15 साल corporate को serve किया है. Due to my personal reasons, I had to take a break. But as we always say that education never fails you. You get stuck somewhere or the other, काम करने को मिल ही जाता है. और जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपको ऑनलाइन वर्क प्रीमाइसेस बढ़ जाते हैं, एंड दैट इज वेयर स्किल निंजा परफेक्टली फिटेड इनटू माय लाइफ. सो मुझे 1.5 year हो चुका है. एज आई मेंशन दैट आई एम फ्रॉम द पायलट बैचेस, विच मीन्स जब टेक निंजा स्टार्ट हो रहा था, आई वॉज फर्स्ट 2-3 ट्रेनर्स जो हायर हुए थे, वो अभी भी हैं हमारे टेक निंजा के साथ. उनमें से 2, एक मैं और एक शिफाली मैम, हम दोनों स्टार्टिंग से थे साथ में. सो हमने टेक निंजा इज आवर बेबी. ऑल थैंक्स टू ऋतु मैम, द मैनेजमेंट, Gaurav sir, Mandeep ma'am. Tech Ninja is our baby too, and I'm very much happy to be associated. Thank you ma'am for this opportunity. अब चलते हैं हम technical side पे. कुछ basic rules. So first of all, coming to the very basic techniques of technology of the settings of your laptop or a desktop. हमें ये समझना है कि टेक्नोलॉजी आपको ग्रो करने में हेल्प करती है. मैंने अपनी इंट्रो में भी आपको बताया कि मैंने 15 साल काम तो किया, बट अभी आई एम नॉट ऑन द कॉर्पोरेट साइड, आई एम ऑन द टीचिंग एंड साइड, right? And that too I'm teaching online. I'm teaching technology. I'm here in Delhi. My academy is in Zirakpur, Punjab. I am associated very well with them, and our students are global. हमारे पैन इंडिया के ही नहीं, हमारे स्टूडेंट्स हैं ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट्स के भी. कैसे? कनेक्टिविटी के थ्रू. सो टेक्नोलॉजी तो देखिए सीखनी बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस. दैट इज़ वाई यू आर हियर. आज हम सीखते हैं बेसिक चीज़ जो कि है वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट, पावर पॉइंट, PDF फोल्डर. ये होते क्या हैं? कभी आपने मेसी डेस्कटॉप देखा है? आप मुझे इस चीज़ से बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस का डेस्कटॉप इस टाइप से दिखाई देता है, जो कि है ऐसे. ऐसा. किस किस का डेस्कटॉप ऐसा दिखाई देता है? बिल्कुल मेसी. सब जगह. अलका जी ने हाथ ऊपर किया, विनीता जी ने हटा लिया. प्रॉबेबली उनका सिस्टमैटिक है. इस तरीके से डेस्कटॉप होता है मेसी डेस्कटॉप, एंड मेसी डेस्कटॉप इज अ साइन ऑफ लेस प्रोडक्टिविटी. आपको मेसी डेस्कटॉप से प्रोडक्टिविटी आपकी हैम्पर होती है. इसीलिए मैं आपको बताने आई हूँ कि आप इसको सिस्टमैटिक कैसे कर सकते हैं. उससे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक्सेल शीट क्या होता है. MS ऑफिस, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एक सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम अपने लैपटॉप में बेसिक काम करते हैं. फॉर बेसिक काम वी नीड अ वर्ड डॉक्यूमेंट. वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या बनता है? आपके लेटर्स, आपकी एप्लीकेशंस, आपके CV, आपके प्रोजेक्ट्स, मतलब बेसिक टाइपिंग आपकी होती है वर्ड डॉक्यूमेंट में. और वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है इस आइकन से, जो आपकी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. करेक्ट?
इसके बाद आ जाता है एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में बनते हैं टेबल्स, एक्सेल शीट में बनता है बजट, स्कूल की अटेंडेंस, और इसके अंदर आप बजट घर का बनाओ चाहे आप कंट्री का बनाओ, बट वो सारी शीट्स विद फॉर्मूलाज वो लगता है एक्सेल शीट में। उसका आइकन होता है ये। अगर आप इसको एप्लीकेशन की तरह अपने फोन में डाउनलोड करते हैं तो आधे लोग पूछेंगे मैम दिखाई कैसे देता है एक्सेल शीट। इसके लिए आपको आइकन्स जरूरी होते हैं समझने। सो दिस इज हाउ एन एक्सेल शीट लुक्स लाइक। After that, coming to the presentation. When you are proposing your work, when you are proposing your business to somebody, that is where this PPT comes into picture. PPT की full form होती है PowerPoint Presentation, और ये इस तरीके से दिखाई देता है। अभी मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे दिखाऊंगी किस तरीके से होगा। फिर आता है पीडीएफ। हम पीडीएफ क्यों भेजते हैं? हम डॉक्यूमेंट को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम टर्न कर देते हैं पीडीएफ में जब कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमने किसी से शेयर करना है और मैं चाहती हूँ कि सामने वाला उसमें चेंजेस ना करे। I will turn into PDF, which is very, 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 very easy. जब मैं स्कूल कॉलेज में थी ना, it was very difficult and many of the times it was paid also. But अब तो बिंदास जितनी मर्जी आप PDF को कन्वर्ट करो, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो। आउटर अग्रीमेंट में आपने किसी को अग्रीमेंट्स भेजने, सपोज आपको लगता है कि नहीं ये चेंज कर देगा मेरा अग्रीमेंट, कन्वर्ट इट इनटू पीडीएफ। कोई चेंज नहीं कर सकता, उसका प्रिंट आउट लेंगे, साइन करेंगे, काम खत्म। मगर पीडीएफ कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हम क्लासेस में सिखाते हैं। फिर आ जाता है फोल्डर। फोल्डर का मतलब होता है डिजिटल फाइल, ऑनलाइन फाइल। अब मैं आपको ये सारी चीजें अपने डेस्कटॉप पे दिखाती हूँ। सो दिस इज माय डेस्कटॉप। अब मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगी वर्ड डॉक्यूमेंट कौन सा है। देखिए मैंने निकाला एक वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इसको मैं सेव करती हूँ डेस्कटॉप पे। सेविंग का प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी है, वो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब हम बैच में आएंगे। ये मैंने यहाँ पे लिखा शिखा सिक्का, और ये मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है। सो आई विल शो यू माय डेस्कटॉप पे शिखा सिक्का, दिस वन, ओके। इधर अदर देन दैट इसके बाद आ जाती है एक्सेल शीट्स। कैन यू सी दीज एक्सेल शीट्स? दिस इज द आइकन फॉर एक्सेल शीट्स। अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊं, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। दीज आर द एक्सेल शीट जिसमें हम टेबल्स बनाते हैं, जिसमें हम आपकी अटेंडेंस बनाते हैं, इसके अंदर आप फॉर्मूलाज लगाते हैं। ये भी एक्सेल शीट आपको हम सिखाएंगे। इसके बाद आ जाता है आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जिसका मैंने आइकन आपको ये वाला दिखाया, दिस वन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये आपके प्रेजेंटेशंस के काम आता है। फिर आ जाता है आपका पीडीएफ। पीडीएफ होता है ये, जो कि आपका किसी के अंदर भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसकी एक पावर पॉइंट आपको ओपन करके दिखाऊं, कैन यू सी? इसके अंदर चेंज नहीं होता है, ये एक एडिटेबल नहीं होते हैं। सो ये प्रेजेंटेशंस जो होती हैं ये चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। मगर अगर मेसी डेस्कटॉप है उसको हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, है ना? मेसी डेस्कटॉप थोड़ा सा लग रहा है ना, इसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं? हम बनाते हैं अलग अलग फोल्डर। कैन यू सी दीज फोल्डर्स? इसका नाम आपको दिख रहा है, येलो कलर के फोल्डर्स, या कैन यू सी? इसको कहते हैं फोल्डर। फोल्डर का मतलब होता है एक फाइल जिसके अंदर हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं। अब देखते हैं फोल्डर बनता कैसे है। आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे एक क्लिक होता है, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक। आई एम श्योर सबको पता होगा, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक। अगर आपने कोई भी चीज को सिलेक्ट करना है आप लेफ्ट क्लिक यूज करते हैं, और ये लगा लीजिए 90% ऑफ द टाइम्स लेफ्ट क्लिक ही यूज में आता है। ओके, आई कैन सी सम पीपल आर टेकिंग नोट्स। नीता श्रीवास्तव जी, या I can see Renuka ji also taking up notes. So 99% आपका लेफ्ट क्लिक काम आता है। किसी को सिलेक्ट करना है, किसी को ओपन करना है, 2-3 चीजों को सिलेक्ट करना है, सब चीज में लेफ्ट क्लिक काम आता है। मगर राइट क्लिक की भी अलग अलग, एक अलग तरीके से उसकी यूटिलिटी होती है। राइट क्लिक में आती हैं प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक में आते हैं फर्दर चीजें जो कि हमारी जरूरत है। ओके, सो राइट क्लिक में वो सब आपका काम आता है। नाउ राइट क्लिक में मैं यहां पर आपको देख पा रहे हैं, देयर इज अ कमांड ओवर राइट क्लिक। क्या आप सबको ये दिख रहा है राइट क्लिक में?
राइट क्लिक में आती है प्रॉपर्टीज। अगर आपको कंफ्यूजन जरा सा भी लग रहा है कि यार ये कैसे समझ आएगा, देखिए मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर जो आपको इस बैच के, इस वर्कशॉप के एंड में शेयर की जाएगी, इसमें यहाँ सब लिखा हुआ है, तो एकदम टेंशन नहीं लेना है कि मैं कैसे याद रखूंगी, ठीक है, ये आपको शेयर की जाएगी। यहाँ पे लिखा है मैंने राइट क्लिक ऑन योर माउस, उसके बाद ये शुरू होगा, बट मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। ये मैंने किया राइट क्लिक, राइट क्लिक में आ जाता है फर्स्ट, आ जाता है आपका न्यू, न्यू में आएगा आपका फोल्डर। कैन यू सी, राइट क्लिक में आया न्यू, न्यू में आया फोल्डर। मैंने यहां पर एक फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर मतलब डिजिटल फाइल। अब लिख लीजिए, फोल्डर का मतलब डिजिटल फाइल। फाइल के अंदर हम छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स डाल देते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो गए, आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट, और आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपका पीडीएफ, आपकी फोटोज, आपका सॉन्ग, सारी छोटी छोटी चीजें हम फोल्डर में डाल सकते हैं। मैंने ये फोल्डर डाला, अब फोल्डर दिख रहा है ब्लू कलर का हाईलाइटेड, है ना, ब्लू कलर का हाईलाइटेड। यहां पर हम इसको नाम दे देंगे। मैंने टाइप कर दिया वर्कशॉप प्रैक्टिस, मैंने इसको नाम दे दिया। अब मेरा ये वर्कशॉप के नाम का फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर में चीजें कैसे डलती हैं, अब आप ये सोचोगे ना, देखो ये फोल्डर है, ये खाली है, फोल्डर को मैंने डबल क्लिक किया, ये है एम्प्टी, मगर फोल्डर में चीजें कैसे डलेंगी उसको देखते हैं। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, ये असेसमेंट, असेसमेंट पीपीटी, असेसमेंट वर्ड, है ना। अभी आप सोचोगे असेसमेंट क्या होता है, जब हम अपने कोर्स में स्टूडेंट्स, अब आप सोचेंगे असेसमेंट क्या है, तो जब आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, उसके साथ आपको जरूरत होती है थोड़ी सी प्रैक्टिस की, है ना, वरना क्या रहता है, आगे दौड़ पीछे छोड़। हम लेडीज है, हमारे पास 10,000 काम सिर पे होते हैं, बच्चे, फैमिली, घर, किचन, खाना, लंच, डिनर, तो हमें अपने लिए क्या रहता है, ये चीजें हम भूल जाते हैं, 1 घंटे के बाद फुश दिमाग में से उड़ गया। तो हम क्या देते हैं, छोटा छोटा असाइनमेंट देते हैं। सो ये वही वाले असाइनमेंट्स है जो मेरे स्क्रीन पे, जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं बेसिकली। तो ये असाइनमेंट को अगर मैं अपने फोल्डर में डालना चाहती हूँ, इन ऑर्डर टू प्लान माई डेस्कटॉप वेल, और अगर डेस्कटॉप प्लान रहेगा मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो आप क्या करोगे, फोल्डर्स बनाओगे छोटे छोटे। तो मैंने इस असेसमेंट को प्रेस किया, सिंगल प्रेस, और इसको मैंने उठाया और ये वर्कशॉप के अंदर छोड़ दिया। मैं दोबारा करके दिखा रही हूँ, मैंने इसको लेफ्ट क्लिक किया, देख रहे हो मेरा सिलेक्टेड लग रहा है, इसके आसपास एक स्क्वायर सा बन गया, तो मतलब ये सिलेक्टेड है। मैंने लेफ्ट क्लिक से उसको पकड़ा 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 और मैंने इस वर्कशॉप के अंदर छोड़ दिया। तो मेरे वर्कशॉप प्रैक्टिस के अंदर 3 डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, मतलब मेरा डेस्कटॉप थोड़ा साफ लग रहा है। एक और पकड़ते हैं, आप देखो फोल्डर में फोल्डर भी आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक दिखाती हूँ, सॉन्ग्स, ठीक है, ये मैंने अपने जो भी गाने डाउनलोड कर रखे हैं ना, मैंने उसको थोड़ा एक ही फोल्डर में डाल दिया ताकि मुझे आसानी रहे। ये लिटिल जॉय ऑफ थिंग्स मेरा एक सॉन्ग है, बाहर रह गया, इसको मैं अंदर डालती हूँ सॉन्ग के फोल्डर के अंदर। मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसको धीरे से स्लाइड किया और ये मेरे सॉन्ग्स के फोल्डर में आ गया। अब मैं आपको सॉन्ग्स का फोल्डर ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए मुझे बड़ा म्यूजिक पसंद है, तो कुछ एक गाने मेरे पास हैं, तो ये देखा आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे मेरे सॉन्ग्स इसके अंदर हैं। क्या, दिस मेक्स इट मोर सिस्टमैटिक। मुझे पता है कि अगर मुझे अपना गाना ढूंढना है कोई भी, तो मैं सिर्फ सॉन्ग्स का फोल्डर ओपन करूंगी, मुझे मिल जाएगा। दूसरा मैंने अभी दिखाया आपको वर्कशॉप प्रैक्टिस, इसके अंदर मैंने 3 फोल्डर्स, 3 डॉक्यूमेंट्स डाले हैं। मैं इसे ओपन कर रही हूँ, देखिए मेरे तीनों इसके अंदर मिल गए, है ना। तो मैंने एक फोल्डर, मतलब एक डिजिटल फाइल के अंदर मैंने एक्सेल शीट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, कुछ भी चीजें मैं उसके अंदर डाल सकती हूँ, और मैं फोल्डर के अंदर फोल्डर भी डाल सकती हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको करके। मेरे सॉन्ग का फोल्डर है, मैं इसको उठाऊंगी और मैं वर्कशॉप प्रैक्टिस के अंदर डाल दूंगी। तो मैं इसको ओपन करती हूँ अगर, तो मेरा इसके अंदर सॉन्ग्स का फोल्डर भी आ गया। मगर कभी आपको एज के हिसाब से लग सकता है यार ये तो आइकन बहुत ही छोटे हैं, मेरे को देखने में दिक्कत हो रही है, या ऐसे घुस घुस के देखना पड़ता है, हो जाता है ना कई बार, चश्मा नहीं लगाया हुआ तो भैया बहुत ही मुश्किल होगी, मैं कैसे देखूं। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसका लुक भी चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कैसे, राइट क्लिक, फिर से राइट क्लिक है, ठीक है, ये मैं अब आपको नेक्स्ट चीज दिखा रही हूँ। फिर से राइट क्लिक है, हम राइट क्लिक करेंगे और आपको व्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरा स्मॉल आइकन पे कर्सर है, मैं इसको थोड़ा मीडियम कर देती हूँ, थोड़े से बड़े हो गए आइकन्स, और एक और करके दिखाती हूँ जी, लार्ज आइकन्स। अब तो बिंदास आप देख सकते हो, है ना, आराम से आपको कंफर्टेबली आपको ये लुक समझ आ जाएगा। ये सारा राइट क्लिक का खेल होता है, राइट क्लिक में सेटिंग्स और प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। सो एनीबडी हु हैज सम पावर, एनीबडी हु थिंक्स कि मुझे
नया नया सीख रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा और इजी चाहिए, यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द साइज ऑफ योर आइकन्स। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मगर ये सब हमारी लाइफ को थोड़ा सिस्टमेटिक कर देती है और हमारे सीखने के डर को कम कर देती है, इजंट इट? इसके बाद एक और चीज आ जाते हैं, डेस्कटॉप के साथ हम खेलते हैं। आपने मेरे डेस्कटॉप पे क्या दिखाई दे रहा है? हम डेस्कटॉप की थोड़ी सी सुंदरता बढ़ाते हैं। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि डेस्कटॉप पे लोग अलग अलग कलर लगाते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, अपनी पिक्चर्स लगाते हैं, पर्सनल पिक्चर्स लगाते हैं? ये सारी डेस्कटॉप की सेटिंग्स कहलाती है, ठीक है? अब मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। सो डेस्कटॉप में ना कुछ सेटिंग्स होती हैं, मैं आपको अब वो कराने वाली हूँ। ये उसका पेज है, ये उसका लुक है जो आपको मिल जाएगा। आपके पास यहाँ पे सर्च का बटन होगा, हर एक के पास होता है। यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन जो आपको नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं मिल रही है, आप यहाँ पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है? कुछ भी है, जैसे एक्सेल ढूंढ रहे हो, आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा, डेस्कटॉप पे कहाँ सेव करा था, कहाँ सेव करा था, मिल नहीं रहा, आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो मैं सर्च बटन में गई और मैंने यहाँ पे ढूंढी सेटिंग्स। क्योंकि ये वर्कशॉप सेटिंग्स की है तो सेटिंग्स करानी तो भाई जरूरी हो गई। दिखा, हर एक में ये सेटिंग्स करके या कंट्रोल पैनल करके आपके पास ये आएगा, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, ठीक है? इस सेटिंग्स के अंदर मैं आपको सबसे पहले डेस्कटॉप की सेटिंग्स दिखा रही हूँ, ठीक है? सो इसके अंदर ना बहुत कुछ है। आपका नेटवर्क इंटरनेट नहीं चल रहा, आपने कुछ लिंक करना है, आपने कुछ डिवाइस, ये देखो ब्लूटूथ प्रिंटर, ये अटैच करना है। सेटिंग्स के अंदर का सारा खेल है ये, सेटिंग्स के अंदर का। मगर मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ अभी? बैकग्राउंड। तो मुझे जाना है पर्सनलाइजेशन में। आपको मिलेगा इस टाइप का आइकन, पर्सनलाइजेशन। कैन यू सी? उसके अंदर बैकग्राउंड है, मैंने आपको ये दिखाना है पर्सनलाइजेशन जिसमें बैकग्राउंड है। आइए अब इसमें चलते हैं, मैं एक मिनट इसको क्लियर कर दूं ना। इस पर्सनलाइजेशन के अंदर आप पर्सनल सेटिंग्स में पहुंच जाते हैं। मैंने कौन सा कलर लिया हुआ था? ब्लू, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिससे कि आपने मुझे बताया। मैं पिंक ले लेती हूँ, लेट मी बी लिटिल मोर फेमिनिस्ट। मैं पिंक ले लेती हूँ, मैं ब्लड रेड ले लेती हूँ, मैं येलो ले लेती हूँ। मेरा डेस्कटॉप का कलर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। या खेलिए, होली खेलिए अपने डेस्कटॉप के साथ बिंदास होके, है ना? कलर्स होने चाहिए लाइफ में। आप रोज एक नया कलर लगा के प्रैक्टिस करना। देख पा रहे हो मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? रोज एक नया कलर लगा के प्रैक्टिस करना। किसी का बर्थडे आ रहा हो तो उसकी फोटो लगा के देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए, बैकग्राउंड में ना आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। जो मैंने सिंगल कलर लिया है, इट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड कलर। आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड में मेरे क्या लिखा हुआ है? इट्स अ सॉलिड कलर, मतलब सिंगल कलर। ऑब्वियसली सॉलिड कलर कहलाता है। हम लेते हैं ना सॉलिड कलर के सूट्स, या सॉलिड कलर चाहिए मुझे तो, है ना? कोई कहता है मुझे प्रिंट्स चाहिए, सो दिस इज कॉल्ड ए सॉलिड कलर। इसके बाद मैं ले सकती हूँ एक पिक्चर। मैं पिक्चर भी ले सकती हूँ। मेरे पास अगर ये कोई फनी सी, मेरे पास कार्टून रखा है, मैं ये ले लेती हूँ। मैं दीपिका पादुकोण की फ़ैन हूँ, मैं ये ले लेती हूँ। अब ये तो मैंने ऑलरेडी डाल के रखे हैं, मगर आप कैसे डालोगे? आ जाओ वो देखते हैं। नीचे आपको ब्राउज का बटन दिख रहा है। कहीं पर भी ऑनलाइन आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ब्राउज का हिंदी में मतलब हो जाएगा आओ ढूंढे। आप इंटरनेट पे ब्राउज करो, आप डॉक्यूमेंट्स में ब्राउज करो, आप डेस्कटॉप में ब्राउज करो, कहीं भी ब्राउज करो। ब्राउज का मतलब होता है चलो ढूंढते हैं। चलो फिर मैं ढूंढती हूँ। तो मैंने ब्राउज पे क्लिक किया यहाँ से, और मैं चली गई कहीं से भी ढूंढने के लिए। तो मेरे डेस्कटॉप पे फोटोज हैं, मैं वो ले लेती हूँ। तो मेरे डेस्कटॉप पे फोटो है ये वाली ले लेती हूँ, इस लेडी की। पता नहीं आप जानते हैं नहीं, बट ये एक टीवी एक्टर है, मानवी घुंगरू समथिंग। तो ये मैं किसी प्रैक्टिस के लिए लिया था इनका पिक्चर, मैंने इनका पिक्चर इंसर्ट कर दिया। सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने ब्राउज करके पिक्चर सिलेक्ट करी है। ब्राउज मतलब ढूंढो। मैंने ढूंढ के पिक्चर सिलेक्ट करी है। अब ये पिक्चर है आधी, मैं सोचती हूँ पूरे डेस्कटॉप पे आ जाए। आओ सेटिंग चेंज करते हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा चूज अ फिट। मैंने क्या किया, मैंने पिक्चर को ले लिया, मैंने पिक्चर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं थोड़ा फिट देख लेती हूँ कैसे लग रहा है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ मेरा सारा फिटमेंट आपको दिखाई दे जाएगा कि कैसे जा रहा है फिटमेंट। चलो देखते हैं। मैंने किया फिल, पूरी फिल होके आ गई, मतलब पूरे डेस्कटॉप पे आ गई वो, राइट? दूसरा देखते हैं, आ जाता है फिट, मतलब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकली पे तो छूट गई, बट हॉरिजॉन्टली वो फुल है।
फिर आ जाता है स्ट्रेच, एकदम खिंच के। दो आई डोंट लाइक दिस स्ट्रेच पार्ट, क्योंकि ये पिक्चर को खराब कर देता है, ये पिक्चर को पिक्सेलेट कर देता है। उसका मतलब मैं आपको अभी बताती हूँ। टाइल, टाइल की तरह आ जाएगी। सपोज कीजिए मैंने पुरानी पुरानी लगा रखी है बहुत सारी, इसीलिए ये टाइल की तरह बहुत सारी आ गई हैं। उसके बाद आ जाती है सेंटर, मैंने इनकी ले ली, सॉरी, मैं इनके वापस जाती हूँ मानवी में, सेंटर। और इसमें आ जाती है स्पैन, ये भी थोड़ी पिक्सेलेट करती है, मुझे ये नहीं पसंद आता। सो आई प्रेफरेबली लाइक अ टाइल, और आई प्रेफरेबली लाइक अ फिट, नॉर्मल ठीक ठाक रही। पिक्सेलेट का मतलब होता है हर पिक्चर की क्वालिटी उसके पिक्सल्स पे डिपेंड करती है, विच मीन्स क्रॉस ना, ऐसे क्रॉस इंटरसेक्शन के कलर्स होते हैं। सो जैसे कहते हैं ना, एक फोन महंगा क्यों होता है? एक फोन महंगा होता है जब उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है। पिक्चर क्वालिटी मतलब 10 मेगापिक्सल, इस इतना मेगापिक्सल, तो जितना मेगापिक्सल्स बेटर होते हैं उतनी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है। मगर अगर मैं इसको स्ट्रेच कर देती हूँ ना, तो हिंदी में समझिए वो पिक्चर थोड़ी फट जाती है, पिक्सेलेट हो जाती है। तो वो मुझे एटलीस्ट पसंद नहीं है। आपको पसंद आए तो आप रखो, मैंने बहुत लोगों को देखा रखे हुए, मुझे पसंद नहीं है। मुझे नॉर्मल फिट वाली पिक्चर पसंद है, जो कि थोड़ी सी देखने में क्लियर लगे। सो दिस इज हाउ यू चूज अ पिक्चर। इफ यू वांट अ पिक्चर ऑफ अ हैंडसम मैन, सी, मैंने लिख दिया, उसको हैंडसम मैन को लगा दिया अपनी पिक्चर पे, डेस्कटॉप पे। सुबह सुबह देखो, हो करण भाई की फोटो देखो, ऋतिक रोशन की फोटो देखो, अपने हस्बैंड की फोटो देखो, अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देखो, वट एवर यू फील लाइक, आप अपनी अच्छी सी पिक्चर अपने डेस्कटॉप पे लगाइए। इसके बाद एक थर्ड ऑप्शन होता है, विच मीन्स अ स्लाइड शो। आई होप इट इज नॉट दैट हैवी, समझ आ रहा है सबको? आई होप मैं ज्यादा स्पीड में नहीं जा रही हूँ। ओके नीता जी, आई कैन सी बेनाज जी का हेड नॉट हुआ, आई कैन सी शमाला जी का हुआ, थैंक यू सो मच। ठीक है, मुझे समझ आ गया चैट बॉक्स में भी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। इसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन, स्लाइड शो। स्लाइड शो का मतलब तो आप सबको पता है ना, स्लाइड शो मतलब पिक्चर्स चेंज होती रहती हैं। अब स्लाइड शो पे मैं चली जाती हूँ। इसमें मुझे एक फोल्डर लेना पड़ेगा। स्लाइड शो का मतलब एक से ज़्यादा पिक्चर ना, तो किसी भी फोल्डर में एक से ज़्यादा पिक्चर होंगी तो वो स्लाइड शो पे लग जाएगा। देखो मैंने गई ब्राउज पे, ब्राउज का क्या मतलब हुआ, ढूंढो, आओ चलो ढूंढते हैं। तो मैंने ब्राउज किया और मैंने एक यहाँ पर ना फोल्डर बना के रखा था। हाँ, मैंने एक फोल्डर बना के रखा था यहाँ पे, टेक हैक करके। टेक हैक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, मैं आपको एंड में बताऊंगी ना। मैंने ये चूज कर लिया फोल्डर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप स्लाइड शो लगाएंगे आपको फोल्डर चूज करना है। स्लाइड शो का मतलब होता है बहुत सारी फोटोज, है ना, और बहुत सारी फोटोज किस में डलेंगी, एक फोल्डर में। जैसे कि मैंने आपको समझाया था अभी, फोल्डर मतलब बहुत सारी चीजों का एक बड़ा डिजिटल फाइल। मैं गई टेक हैक के अंदर, मैंने ये चूज कर लिया फोल्डर। अब देखेंगे आप मेरे टेक हैक की फोटोज इसके अंदर आ गई, दिखा? थोड़ा जैजी लग रहा है वैसे, बट मैं इसको रखूंगी नहीं ना, मैं तो आपको सैंपल दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो ये थोड़ी ज़्यादा पिक्चर्स आप रखो ना ऐसे स्ट्रेच करके, तो थोड़ी समझ कम आती हैं। बट अगर कम काम है, सिर्फ डिज़ाइनर के लिए देखना है, तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये मैंने रख दिया टेक हैक। अब मुझे चाहिए हर मिनट में फोटो चेंज हो जाए, तो मैं नीचे उसका टाइम चेंज कर सकती हूँ। क्या बढ़िया टेक्नोलॉजी है ना। मैंने टाइम चेंज कर दिया, 1 मिनट से हर 10 मिनट में एक फोटो चेंज हो जाए, नहीं, हर आधे घंटे में एक फोटो चेंज हो, हर 1 घंटे में हो, 6 घंटे में हो, या पूरे दिन के बाद हर दिन एक नई फोटो आए, वो मेरी मर्जी, वो आपकी मर्जी। मैं चाहती हूँ हर 1 मिनट में फोटो चेंज हो जाए, तो 1 मिनट में फोटो चेंज हो जाए। आप देखोगे हर मिनट के बाद ये फोटोज चेंज होती रहेंगी। ठीक है जी। सो इससे पता लगता है कि आप अपने डेस्कटॉप को कस्टमाइज कर सकते हो अपनी मर्जी से। माय डेस्कटॉप माय रूल्स होता है ना, माय लाइफ माय रूल्स। सो योर डेस्कटॉप योर रूल्स, माय डेस्कटॉप माय रूल्स। दिस इज द वे यू कैन हैव रूल्स। मैं सॉलिड कलर लेती हूँ क्योंकि मैं अभी आपको समझा रही हूँ, तो आई डोंट वांट अ लॉट ऑफ हैसल ऑन माय डेस्कटॉप। मैं सॉलिड कलर पे वापस आ गई। सो मैंने अभी आपको क्या समझाया है, आप सेटिंग्स के बटन, यहाँ इस सर्च बटन में जाके आप सेटिंग्स ढूंढेंगे। सेटिंग्स के अंदर जाके आप यहाँ पर पर्सनलाइजेशन ढूंढेंगे। पर्सनलाइजेशन मतलब आप अपने डेस्कटॉप को कैसे पर्सनलाइज करोगे। इस पर्सनलाइजेशन में जाकर आप अपने कलर सॉलिड लोगे, चाहे पिक्चर्स लोगे, चाहे स्लाइड शो लोगे, आपकी मर्जी।
इज दैट क्लियर? सो दैट इज द चार्म ऑफ स्किल निंजा कि हम लोग सब एज को केटर करते हैं और उनके हिसाब से चलते हैं, और कोई बेसिक से आ रहा है उनको भी हम वैसे ही सिखाते हैं, और जो सीनियर्स हैं उनको भी, जो थोड़े एक्सपीरियंसड है उनको भी. एंड बेस्ट पार्ट इज दैट देयर इज वुमेन पावर, एवरीबडी शोज पेशेंस फॉर द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड. चलिए, मैंने आपको समझाया बैकग्राउंड, अब मैं आपको थोड़ा माउस का कर्सर समझाती हूँ. जैसे मैंने आपको बताया, मैं डेस्कटॉप की साइज को, आइकन्स को चेंज कर रही थी ना अभी, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, है ना, उसी तरीके से मैं माउस का कर्सर भी थोड़ा चेंज करके दिखाती हूँ. अब देखो, ये कर्सर आपको भी दिखाई देगा एक डिफरेंट कलर में. सेम, अगेन आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस. अब मैं कर्सर के साइज पे जाती हूँ, फिर वही प्रोसेस है, मुझे सेटिंग्स पे जाना है. ठीक है, क्योंकि ये सेटिंग्स हैं, मुझे दोबारा सेटिंग्स पे ही जाना पड़ेगा. फिर मैं आपको बोलती हूँ, बिंदास रह के समझिए, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं प्रेजेंटेशन के अंदर. ठीक है, सो मैं सेटिंग्स में गई. अभी मैंने आपको दिखाया था लुक का, मगर अब मैं दिखा रही हूँ किसी डिवाइस का. सो माउस क्या है? माउस एक डिवाइस है. सो कैन यू सी अ डिवाइस फोल्डर ओवर हियर? दिस डिवाइस फोल्डर. मैं यहाँ पर गई डिवाइस के अंदर, यहाँ पर माउस है. किसी को माउस दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये रहे ऑप्शंस, और ये रहा मेरा माउस. ठीक है, माउस किस टाइप के होते हैं, माउस की वर्किंग कैसे होती है, हम ये सब एक एक दिन लेके आपको आराम से सिखाते हैं, बट क्लास के अंदर. ठीक है ना, क्योंकि 40 डेज की क्लास है, तो ये सारी चीज़ें हम श्योर समझ ही सकते हो आप, बेसिक में हम किस तरीके से क्लियर कर देते हैं. सो ये मेरा माउस का आइकन है. इस माउस के अंदर जाके मैं इसकी आपको चेंज करके दिखाती हूँ. माउस के अंदर जाके आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे मिल सकता है एडजस्ट माउस या कर्सर, माउस का कर्सर साइज. ये सब कुछ आपको थोड़े से अलग मीनिंग में, अलग वर्डिंग्स में मिलेगा, मगर मिलेगा सेटिंग्स के अंदर ही, डिवाइस के अंदर, डिवाइस के अंदर जाके माउस. अब मैं इस माउस के को क्लिक करती हूँ और आपको फिर कलर पैनल दिख गया. इस माउस के अंदर कलर्स आते हैं. अब मेरे माउस का कलर कौन सा हो गया? बताइए, माउस का कलर कौन सा हो गया? ये मेरा माउस का कलर चेंज हो गया. मैं पिंक करके रख रही हूँ, मैं येलो कर रही हूँ, मैं दूसरा येलो, मस्टर्ड और लाइट ग्रीन, लाइम कलर, विच एवर कलर सूट्स माई आईज. आई वॉन्ट टू प्ले अराउंड विद कलर्स, आई कैन डू इट. यहाँ से आप अपना माउस का कलर चेंज कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा डिजाइनर जाना है तो फर्दर ऑप्शंस आते हैं यहाँ नीचे, पिक अ कस्टम कलर. थोड़ा और लग रहा है कि आप तो यहाँ पर आप इसका साइज को, सॉरी, कलर को चेंज करते हो. दूसरी बात, आप सबको तो माउस बहुत छोटा सा ही दिख रहा होगा, मगर मैं सपोज चाहती हूँ कि आइकन्स के साथ साथ मेरा माउस का साइज भी बड़ा दिखे, तो यहाँ ऊपर में आप माउस का साइज बड़ा कर देते हैं. ये आपको नहीं दिखेगा पर मुझे दिखेगा. ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी कन्वीनियंस के लिए माउस का साइज ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं और कलर भी चेंज कर सकते हैं. आई स्टिक टू पर्पल, अभी के लिए पर्पल सही. ये भी आपकी सेटिंग्स सारी आपके लैपटॉप की सेटिंग्स के अंदर से आता है. ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी थोड़ी बहुत सेटिंग्स जो मैंने आपको सिखानी थी. अब एक थोड़ा सा हार्डवेयर के ऊपर सा थोड़ा सा एक लास्ट चीज आपको दिखाती हूँ, विच इज कॉल्ड एज वर्चुअल कीबोर्ड. कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे घर में पुराना लैपटॉप हो गया सपोज, या बच्चे घर में खेलते खेलते कीबोर्ड को कहीं से तोड़ ताड़ देते हैं. कोई की गुम हो जाती है, कोई की प्रेस नहीं होती है, कोई की खराब हो जाती है. कई बार होता है, मेरे साथ भी होता है. तो आपको शायद नहीं पता होगा, हमारे लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप में एक आइकन होता है, एक ऑप्शन होता है विच इज कॉल्ड एज वर्चुअल कीबोर्ड. ठीक है, अब वर्चुअल कीबोर्ड को हम ढूंढते कैसे हैं? जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी, मिली नहीं, कहाँ ढूंढोगे? सर्च बटन में. मैं फिर सर्च बटन में गई, मैंने यहाँ पे टाइप किया कीबोर्ड, KEYBOARD. इट्स कॉल्ड एज वर्चुअल कीबोर्ड, इट्स कॉल्ड एज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल कीबोर्ड. वर्चुअल कीबोर्ड आपका बिल्कुल एग्जैक्ट कीबोर्ड की तरह काम करता है. अगर मैंने ये वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है और मेरा ये कीबोर्ड से मैं काम करती हूँ, देखिए SHIKHA, स्पेस लिया, SIKKA, एंटर किया, स्किल, स्पेस लिया, निंजा. समझ आया? सब कुछ पूरा का पूरा जैसा आपका कीबोर्ड होता है वो आपको वर्चुअली मिल जाता है.
आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, इसे बड़ा कर सकते हो। इस वाइट लाइन को मैं एक बार दोबारा दिखाती हूँ, इस वाइट लाइन को पकड़ के ड्रैग कर सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो, और यहां से जाके क्रॉस बटन से, एज यू ऑलवेज से, क्रॉस कर सकते हैं। समझ आया? दिस इज टेक्नोलॉजी। आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्माइलिंग फेसेस। आई एम सो हैप्पी। आई कैन सी अ लॉट ऑफ smiling faces right now. This means that this was a successful workshop. It seems that you guys did understand this. And why you understood this is because you had interest in learning technology. Isn't it? टेक्नोलॉजी या पढ़ाई कभी भी खराब नहीं होती है, हमेशा आपकी लाइफ में काम आती है। पर टेक्नोलॉजी आपको ग्रो करने में भी हेल्प करती है। अगर किसी का बर्थडे आ रहा है सपोज, और किसी ने ओ बढ़िया सा पिक्चर्स डाल के, म्यूजिक डाल के विश कर दिया, और आपने लिखा हैप्पी बर्थडे XYZ, तो आप बताओ, आपको नहीं लगेगा यार ये मुझे भी आ जाता तो कितना बढ़िया होता? लगता है ना सबको? तो मुझे भी ऐसा लगता कि यार मुझे भी आ जाता। सो दैट इज समथिंग वी टीच पीपल. That is what is in our 4 month of course. We teach them. There is a software that we teach. There are 2 applications that we teach. और अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो, जो मैं पूछ रही थी आपसे स्टार्टिंग में भी, मुझे बताना मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी है। ये इस टाइप की हम प्रेजेंटेशन भी आपको बनाना सिखाते हैं, इस टाइप की प्रेजेंटेशंस भी हम आपको बनाना सिखाते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड। वंडरफुल ब्यूटीफुल बर्थडे और एनिवर्सरी के कार्ड्स हम आपको बनाना बताते हैं, लवली प्रेजेंटेशंस आपको बनाना बताते हैं, वीडियो एडिटिंग बताना सिखाते हैं, फ्लायर्स और पोस्टर्स कैसे बनते हैं, अच्छी पिक्चर्स उसके अंदर कैसी आती हैं, पिक्चर्स की एडिटिंग कैसे होती है, ये सब सिखाते हैं एडवांस कोर्स में। जब आप बेसिक में MS ऑफिस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वर्ड डॉक्यूमेंट पूरी तरह सीख जाते हैं, हम जाते हैं एडवांस लेवल पे, जहां हम थोड़ा फन करते हैं। जो हमारे एडवांस कोर्सेज के जो 2-3 एप्लीकेशंस है ना, दे आर द मोस्ट लव्ड पार्ट ऑफ आवर कोर्स, मोस्ट लव पार्ट, और उन्हीं में से एक में मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। सो अब आपको पॉसिबल कैसे है? बिकॉज हम रिमोट लर्निंग, इट इज द न्यू नॉर्मल, ऑनलाइन। मैंने आपको बताया ना मेरी अकेडमी जीरकपुर में है, और मैं यहाँ दिल्ली में बैठी हूँ, मैं एसोसिएटेड हूँ, आई एम वर्किंग वेल, आई एम अर्निंग वेल। कैसे? क्योंकि रिमोट है, ऑनलाइन चल रहा है, टेक्नोलॉजी आती है, जॉब मिल गई एक ही इंटरव्यू में। तो इसी तरीके से आपको भी उसी तरीके से हम आपका करियर रीस्टार्ट या बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। और अगर आप उस एज पे हो कि आपने करियर नहीं बनाना, बिंदास कुछ सीखना है, जैसे हमारी 70-75 ईयर्स ओल्ड लेडी सीखती हैं, तो वो भी करो ना, सीखने की कोई उम्र थोड़ी है। अदर देन दैट, यस, इट इज एन इंटरैक्टिव सेशन। अभी तो देखिए मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप चैट बॉक्स में मुझे रिवर्ट कर रहे हो, बट आप देख पा रहे हो मैं बार बार होता है अरे जवाब दो जवाब दो, बिकॉज आई लव इंटरैक्टिंग विद माई लेडीज। हमारे बैच में 10 से ऊपर लेडीज नहीं होती हैं, ठीक है? तो उसमें क्या रहता है? इंटरैक्शन रहता है, वी इंटरैक्ट विद ईच अदर। अगर शमीला जी ने बताना है मुझे एज अनम्यूट करके, आई विल स्पीक टू हर, आई विल लिसन टू हर इन माई क्लास। मैं उनसे सुनूंगी, उनसे बात करूंगी, उनकी प्रॉब्लम वहीं के वहीं सॉल्व करूंगी, बिकॉज वी हैव इंटरैक्टिव सेशंस। अब मैं 200 लोगों से बात नहीं कर सकती ना अभी एकदम से, दैट इज वाई इट इज वन साइडेड। स्टिल आई वांटेड टू स्पीक एंड शो मी योर रिएक्शंस इन द चैट बॉक्स, मगर हमारी क्लासेस इंटरैक्टिव होती हैं। ऑफ कोर्स एज आई सेड, जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं, और स्किल निंजा इट बिलीव्स, स्किल निंजा की एक बिलीफ है कि हम अपनी लेडीज को वुमेन एम्पावरमेंट तो करना ही करना है, वी एब्जॉर्ब देम एज वेल। Many of these trainers were our students somewhere or the other. We give employment opportunities to our ladies also. I'm proud to say जो मेरे साथ राधा मैम बैठी हैं यहाँ पे, जो कि एक कोऑर्डिनेटर प्लस अ वेरी सक्सेसफुल ट्रेनर है, वो कभी मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। मुझे इस चीज़ में बहुत गर्व महसूस होता है कि स्किल निंजा ने मुझे ये ऑप्शन दिया कि मैं ये प्राउड मूवमेंट फील कर सकूँ, और ये इंडिपेंडेंस आप भी फील कर सकते हो। दैट इज वाई वी टीच यू दिस वे एंड वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल। स्किल निंजा का ये USP है। इसके बाद जो आजकल का ट्रेंड है वो है स्किल बेस्ड प्रोग्राम। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आता है ना, आपने 2 महीने में वीडियो एडिटिंग समझा है, दैट मीन्स यू हैव अपग्रेडेड योर स्किल, यू कैन ईजिली गेट अ जॉब। यू डोंट हैव टू गो और डू अ 2 months of 2 years of डिग्री। आपको स्किल है, आपको जॉब मिल जाती है। That is why I always say this is the restarting of your career or boosting your career, or at the end of the day you can learn it as a hobby to make yourself happy, to make yourself independent. सबसे बड़ी बात, आप हमसे बात कीजिए, जैसे मैंने आपको बोला है, नोट कीजिए ये नंबर मोनिका जी का। जब बात करना है, कुछ क्वेश्चन है, मैम कोर्स में क्या कराते हो, मैम ट्रेनर की क्या क्वालिफिकेशन है वो बताओ, मैम लाइव क्लास दो, मैम और क्या क्या सिखाने वाले हो, कुछ भी चीज के लिए डू कम एंड स्पीक टू मोनिका मैम। बाद में रिग्रेट मत करना
कि अरे यार कुछ पूछ ही लेती मैं। ठीक है, मोनिका जी से बात कीजिए, वो सब कुछ आपको सिखाएंगे। इसके अलावा And I think I have to add one thing here, Shikha ma'am. The workshop was amazing, fantabulous. I think all of us agree on the same page because आप सब लोग देख ही रहे हैं chat में, including me. मैंने बहुत कुछ सीखा सी. I'm professional in the language skills, but when it about technical skills, even I get confused. But today's workshop was I would say amazing. I was loving it. The way Shikha ma'am was explaining, I was going in the flow. I did not distract myself with anything. I was all focused in the session. So kudos to you, Shikha ma'am. It was one of the most successful workshop we had with you. थैंक यू Thank मैम। you so much. And ladies, see, यहाँ पर शिखा मैम ने आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग दी है that why don't you join our Tech Ninja course? That is something very important. You should join that. Amazing trainers, and I'm really sure that you will enjoy these classes as well. So जो भी interested है इस course को join करने के लिए अपना name mention कर सकते हैं. It is open for our newbie trainers as well. आपके लिए ही है ये सब benefits. So do come and join our program. Share your numbers with us. Thank you. मुझे किसी ने यहाँ पर स्टूडेंट ने लिखा कि अगर इंग्लिश ना आती हो तो क्या करें। अगर मैम आप में से किसी को इंग्लिश में कोई भी चैलेंज है, पहली बात तो हम आपको इंग्लिश का कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, बट अदर देन दैट हमारे जो टेक्निकल कोर्सेज भी हैं वो भी मैम बाइलिंगुअल होते हैं। सो आवर ट्रेनर स्पीक बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपको उस चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपना नंबर दो और हम आपसे बात